Hello everyone, my name is Ankit Hi, I'm Shri. and we are Motomaze. So a few days ago, Ankit got an opportunity to drive the Honda Elevate 2025 facelift. Heard different opinions about this car. Before I would want to understand how this vehicle feels, rather give me what this vehicle is actually. मैं सीधा शुरू करूँगा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन Okay. 1498 सीसी 119 bhp 145 nm torque and I am pretty much satisfied with the vehicle. Nice. Okay. How does it look? It is boxy, कईयों को नहीं पसंद हाँ. but Honda has done amazingly well इसकी shape को लेके aerodynamic enough. It is not way too edgy जैसे वो curves and cuts दे देते हैं ना. It is not way too edgy. So it's not a loud design. It is very simple, sleek. Nice. If it is on the street, Hmm. Honda के पास बहुत सुंदर कलर्स हैं एलिवेट में. Hmm. अगर ये रोड पे है, it will mark your presence. How many colors does this have? हाँ भाई कलर तो I guess 10 or 12 colors are there. Yeah. Solid colors, dual tone colors. Then there are 3 variations. You get the black edition. You get the Apex edition. बहुत कलर है. इसका जो फेमस कलर है वो है ब्राउनिश मेटालिक कलर है. दैट इज वेरी फेमस. अब ये जो तेरा ब्लैक आ गया दैट इज वेरी फेमस. अब ये एपेक्स जो है इट इज मार्किंग इट्स टेरिटरी इधर. Nice. Assume I got into the car. What am I looking at? You are looking at a new set of interior. Okay. बिल्कुल हटके होंडा की फील से. जनरली होंडा पुरानी सिविक, सिटी, सीआरवी, बीआरवी, मोबिलियो, अमेज कुछ भी उठा लूं, इट इज ऑल सेम. पहले तो मतलब अंदर से दिखने में इट वाज ऑल सेम. तू अंदर बैठ तो तेरे को ऐसा लगेगा बस वो सेडान हो रही है, एमपीवी हो रही है, एसयूवी हो रही है. So their family is very. हाँ ऐसे मतलब अंदर बैठ के इट वाज ऑल बेज इंटीरियर पहले. बट नाउ Whatever car the color is, the interior. बेज इंटीरियर. अब भाई मोका ब्राउन इंटीरियर Mm-hmm. है ना. इन ब्लैक एडिशन यू गेट दी ब्लैक इंटीरियर्स, फुल ब्लैक, रेड स्टिचिंग. Oh. Oh, it is very beautiful. And in Nice. Apex also you are getting some sort of black interior, grayish, dark grey, black ऐसा interior मिल रहा है. The car जो मैंने चलाई थी that it was the brown color which had the mocha brown interiors and it was looking way too premium. So the interiors are luxury enough, comfortable enough. Very comfortable. What's with the pillion? The behind the rear passengers. हाँ, उनका कैसा? तुम 3 एवरेज साइज एडल्ट्स बैठाओगे, छोटे कम्यूट करो और यू आर हिटिंग द हाईवेज, नहीं उनको पेन होगा. मतलब So it's that. इट इज वाइड इनफ. Okay. यू गेट द लेग रूम, गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम. यू गेट द गुड अमाउंट ऑफ हेड स्पेस. If the leg room is good amount, does that mean the trunk space is less? Yes, that is a very good point that you have put it up. अलग अलग कंपनीज में टू कंपेंसेट टू जो है ना कि लेग रूम अगर उनको ज्यादा चाहिए तो उसका कंपेंसेशन बूट पे होता है. बट इन दिस सेगमेंट अच्छा लेग रूम होने के साथ साथ होंडा एलिवेट का सबसे बड़ा बूट स्पेस है. सबसे बड़ा बूट स्पेस है, सबसे अच्छा लेग रूम है, सबसे अच्छा थाई सपोर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट. चाहे वो पैसेंजर का हो, ड्राइवर का हो, मतलब सामने वाले पैसेंजर का या फिर रियर सीट पे पैसेंजर का. Everyone gets a good amount of leg space and thigh support. थाई सपोर्ट जो अपनी फैमिली को भी लेना मांगते हैं. मेरे को नहीं लगता उनको कोई हैसल होगा इस गाड़ी को लेके कहीं पे भी जाने में. Nice. Okay. Who is this car for? दिस कार सही बताऊं तो इट इज फॉर एवरीवन. जिसको परफॉर्मेंस भी चाहिए, जिसको डेली कम्यूट करना है, जिसको कम्यूट के साथ साथ जिसका मन है कि हाँ यार मैं कोई भी रोड हिट कर सकूं, पहाड़ हो, कोई भी टेरेन हो, एनी टेरेन, दिस
can be your first car or can मतलब वो very it is very subjective. If you have the capital in your hand going in this segment या कोई और अगर if you are a SUV enthusiast या sedan enthusiast अगर तुम्हारा मन है SUV लेने का तो ये worthwhile भाई. Capital, how much is it? Starting in Delhi, it is starting at 11.95 मतलब almost लगा ले 12 ex showroom Oh. and it goes up 21-22 max. 11 से 22. हाँ. Why is that? वेरिएशंस यार अलग अलग वेरिएशंस हैं इसमें. वही है मैनुअल. Black edition, Apex. हाँ वही एपेक्स एडिशन. इन्होंने एपेक्स एडिशन इसलिए निकाला इट इज द मिड वे. यू आर गेटिंग Best of both worlds. हाँ कि एडुकेट अमाउंट ऑफ फीचर्स. तो क्या है मतलब इट इज मिड वे. 11 लाख से 21 लाख जितना भी वो जो टॉप एंड व्हाटएवर इट इज, वी आर गेटिंग द सेम इंजन. Same engine. We are just paying for cosmetic changes. Why doesn't the 11 lakh looks like a better choice if I'm getting this? Because 11 lakhs के अंदर तेरे को ADAS वगैरह नहीं आएगा शायद इसमें. और इसमें ADAS level 2 भी है. Okay, now to the important question. Yeah. How does the engine feel? It is punchy. Nice. मतलब you will not feel the lack of power any second. If you have put your foot on the pedal, it will go. Nice. कि जो इंजन मिल रहा है उसका जो रिस्पॉन्स है दैट इज अमेजिंग. मतलब मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि कोई एलिवेट ओनर है और वो इंजन की कंप्लेंट कर रहा है कि आई एम लैकिंग सम पावर, कि मेरे को लोअर रेंजेस ऑफ गियर्स में पावर लॉस हो रहा है, या हाई रेंज में जो मैं जिसको रेफ करने में मजा आता है लोअर रेंज में उसको मजा आएगा भाई. 6,500 तक आरपीएम खिंचता है उसका. अमेजिंग. और बेस्ट पार्ट है उसका जो इंजन है ना, इफ यू लाइक टू गो यू नो हायर आरपीएम्स तो वो रोएगा नहीं इतना. प्लीज आई एम नॉट एनकरेजिंग एनीवन बट मैंने जितना उसको पुश किया था 120s इट वाज वेरी कंफर्टेबल. मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम हिटिंग 120. इट वाज वेरी यू नो क्विक के साथ वो जैसे ईज के साथ चलता है ना कि कोई इंजन हैसल नहीं कर रहा है. हाउ रिस्पॉन्सिव इज द थ्रॉटल? आई मीन वेरी रिस्पॉन्सिव. इट इज वेरी रिस्पॉन्सिव. द ब्रेक्स आर वेरी गुड. व्हाट आर द अदर कार्स ऑफ दिस सेगमेंट? सो किया के पास सेल्टोस है, Hyundai के पास क्रेटा है, देन वी हैव Volkswagen एंड Skoda, जिसके पास आपका टाइगन एंड आपकी मारुति की ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा हैज हाईराइडर. ऑल ऑफ दीज आर they are in the and Honda is Elevate. तो ये सारे सेम सेगमेंट में हैं. Which is the most powerful engine in the segment? Only the two. तेरा एक Creta, the Hyundai and the Kia has the powerful engine. Oh. Yeah, but out of all, Creta I guess has the most powerful engine. So if you had to choose which car in if Elevate, why? और जैसे मैं चलाता हूँ जिस हिसाब से कि कभी कभार मेरे को रिस्पॉन्स भी चाहिए एंड आई वांट टू ड्राइव इट वेरी सटनली एट द लोअर एंड्स एज वेल, तो मैं एलिवेट के साथ जाऊंगा. Why? फर्स्ट द इंजन, सेकेंडली द राइड क्वालिटी, एंड यू आर ड्राइविंग इट अलोन एंड यू आर ड्राइविंग विद एवरीवन, है ना, सबके साथ. तो तुमको ऐसा है कि यू आर सेटिस्फाइंग एवरीवन इन द कार. सेल्टोस, क्रेटा, मैंने हमेशा इनकी कंफर्ट की ही दिक्कत सुनी है लोगों से. How are the suspensions on Elevate? Even the bigger potholes, the smaller ones or the bigger ones, speed bumps, anything, इंच फील होगा बस कभी. और मैं तो इतने बड़े pothole में गया हूँ Elevate को लेके, all I can just feel is to बस. Man, it was very smooth, very smooth. Elevate जो है सबसे ज़्यादा उसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस है out of all SUVs. In general, cars need ground clearance. But what I want Honda कि ये
सिर्फ 1.5 पेट्रोल इंजन पे सीमित नहीं रहनी चाहिए। जैसे यार इन किया, इन Hyundai यू आर गेटिंग हाइब्रिड वर्जन्स या फिर टर्बो, बेसिकली टर्बो इंजन्स, है ना, and you are getting variations like you are getting diesel engines as well, you are getting hybrid engines as well, and you are getting 1.5 liter turbo engines as well, है ना, and in Grand Vitara and in Hyryder you are getting the best in segment hybrid. Few cosmetic changes like panoramic sunroof, है ना, ventilated seats. देखो अपहोल्स्ट्री जो है थोड़ी लेदर की है ना, तो इट इज वे टू ऑब्वियस कि समर के कंडीशंस में यू विल स्वेट। और किया, Hyundai और तेरा बाकी और मारुति और टोयोटा जो है, ये सारे वेंटिलेटेड सीट्स दे रहे हैं, सिर्फ एक एलिवेट में नहीं है। एंड तुम्हारा पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है कहीं उसमें गाड़ियों में, बट इसमें नहीं है। इसमें सनरूफ मिलेगा तुमको इफ यू आर समबडी, जैसे वो कहता है ना सनरूफ पगलू, तो नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि केबिन क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता है, तो उसके लिए कई लोग सनरूफ वाली गाड़ी लेते हैं, लाइट पास हो रही है ना ऊपर से और वेंटिलेशन, तो तुमको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट स्टक इनसाइड अ डब्बा। बट एलिवेट का ये चीज है भाई कि द डोर्स, द विंडोज आर वाइड इनफ, बिग इनफ, तो तुमको ना वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। एलिवेट का बेस्ट पार्ट ये, तुमको एज टू एज बम्पर वो बोनट दिखता है, मतलब जो टर्निंग रेडियस है, यू कैन मैन्यूवर द कार इन ट्रैफिक और एनीवेयर, नो गेसिंग गेम ब्रो। एज टू एज गाड़ी दिखते हुए मैं ट्रैफिक में इतने आराम से मैन्यूवर कर सकता हूँ। वन मोर थिंग, lane assist feature in Elevate. What does this do? Basically, if you are, you know, changing the lane, you are going from a fast lane to middle lane, तो ऐसा होता है ना कभी एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है, तो तुम्हारे ना साइड जो रियर व्यू मिरर्स हैं उसके नीचे कैमरा लगा होता है, वो इंडिकेशन देते रहता है कि कोई, हाँ, मतलब जैसे आपने लेफ्ट के लिए इंडिकेटर दिया तो आपका जो मॉनिटर है ना उसके ऊपर एक स्क्रीन खोल देगा वो, जिसमें आपको वो व्यू दिखेगा कि इफ समबडी इज कमिंग बैक। इसमें एक चीज की दिक्कत लगी भाई मेरे को, ड्राइविंग एड्स कि लेफ्ट साइड जाने के लिए तो है असिस्ट, राइट साइड जाने के लिए नहीं है। हाँ, राइट साइड वाले मिरर पे नहीं है। मैंने यही तो पूछा था जो सेल्स पर्सन थे, मैंने कहा आई एम गेटिंग लेन असिस्ट फीचर ऑन द लेफ्ट, राइट साइड पे क्यों नहीं है? तो उन्होंने भी ना थोड़ा बैफल्ड है। लेफ्ट ड्राइविंग कंट्री इसलिए पता नहीं भाई, बट मतलब अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं असिस्ट तो हर जगह करूंगा ना लेन, मैं लेफ्ट भी जा सकता हूँ, राइट भी जा सकता हूँ। राइट जाने के लिए मेरे पास वो नहीं है। और हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट फीचर इस कार में ADAS लेवल 2, पूरे सेगमेंट के अंदर लेवल 1 मिलता है, कईयों में तो है ही नहीं भाई। वो गाड़ियां खरीदना, Skoda, they don't have it, Germans don't give a, they believe in higher speeds, good engines. Why I will prefer Skoda and Volkswagen is just for the engine and the safety behind it, ठीक है। Why I will prefer, अगर Hyryder is also Japanese, right? हाँ, वो तो इनके अलग ही कोलैबोरेशन चल रहा है, मारुति और टोयोटा वाला जो है ना, कि what guys you are making, we are. No, how is a Hyryder compared to a Elevate, two Japanese vehicles? हाँ, उसके मामले में इंजन जो है वो मेरे को एलिवेट का ही बेटर लगा। Okay. हाईराइडर वगैरह का थोड़ा सा इट इज लेस पावरफुल इंजन। Does Honda have any car which has more than a 1.5 liter? 1.5 is the top notch Honda is making in India. Elevate and cities share the same engine. क्रेटा वगैरह में, क्रेटा और सेल्टोस में भी मेरे को जो इंटीरियर का फील है दैट इज नॉट वेरी अप टू द मार्क द प्राइस आई एम पेइंग। राइड क्वालिटी अच्छी है, फील अच्छा है एलिवेट का, यू नो, यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ
hitting, pushing it harder. You are That's not the best part of हाँ, you are not scared of driving it in the narrow spaces या traffic या एच टू edge to edge सब दिख रहा है. किसी को panoramic sunroof मिल जाए या देखो टायर से मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस से मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, इंजन का मैंने बोल दिया है, थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस बोल दिए हैं, बूट स्पेस बेस्ट इन क्लास है और बचा ही क्या है. That is good to hear. It's a wholesome car. इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि जब इनका वेरिएंट्स Top ऊपर tier. वाले उसमें आते हैं तो एक तो एलईडी सेट ऑफ लैंप्स मिलता है ऊपर भी और फॉग लैंप्स भी एलईडी है. मतलब दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल उस पे. बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा थ्रो है और मतलब ऐसा है कि एक बार ले लो और गाड़ी बाहर से छिड़वाओ ही मत. Nice. एंड ऑल्सो होंडा की सर्विसेज, होंडा के सर्विस सेंटर्स और जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं इनके और इनके साथ, दे आर वेरी कीन, या ना, कीन टू नो दैट इफ यू आर एंजॉयिंग इट और नॉट. और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं यार. देखो इफ यू हैव टेकन अ 21 मतलब अबव 15 और 20 लाख कार, तो यू आर विलिंग इनफ टू पे कोई मेजर या माइनर सर्विस पे 5-6-7 हजार रुपए देने में कोई माड़ी चीज नहीं है. That's it. हाँ यार, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना चला जाएगा, 10-12 मैक्स टू मैक्स मेजर. कूडोस टू होंडा तो कि उन्होंने इतना बढ़िया इंजीनियरिंग करी है, इतनी बढ़िया मार्केटिंग करी है और टीम उन्होंने अच्छी बनाई है, उनके सर्विसेज अच्छे हैं, उनके मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है वो भी मतलब बेयर मिनिमम है कि इतना तो आप अफोर्ड कर ही लोगे. ऐसा है. तो मेरे हिसाब से दे हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड मशीन. So this was the Honda Elevate 2025 facelift version wave. If we have not touched on anything during the whole conversation, please do comment and let us know more about the vehicle. As far as what we have heard, Honda seems to have done a very good job with the Elevate. और अगर किसी के पास Honda Elevate है तो उसका कोई रिव्यू अगर देना चाहे तो कमेंट डाउन बिलो. बाकी Peace. सेफ.